students. Hope you all are doing well. And in previous video, as I have covered all the topics related to photosynthesis, and I hope that you all have understood it well. And now we are going to start a fresh topic, that is respiration, and it is very much important if you are talking about all the exams related to UG, PG, and even of PhD level. So important, very small things will matter a lot, and it gives you a quick revision as well as will provide you the notes also. So be with us. We are going to start it very soon. So students, let's start the chapter respiration. Respiration is a topic which we are studying from class 3rd till PhD level. Okay, and the topic is very important because it is directly linked with the process, our internal process. It can be plants or it can be animals or a human body. So basically the respiration process is common in plants, animals and human body. Okay, so let's start the respiration from a very basic level to the higher level. So we are starting with the definition. So respiration is a biochemical process by which cells break down the organic molecules like glucose and release the energy in the form of ATP. It is very basic definition. It can be glucose, it can be sucrose, it can be any molecule, it can be fat, it can be amino acids. Each and every molecule in the one way or in the other way breaks down and forms the ATP. Okay, so the process can be different, and so here we are basically dealing with the plants. Okay, हालांकि process is similar in plant, animal and human body, but still हम लोग plants की ही बात करेंगे. So the overall reaction is C6H12O6 plus 6CO2 gives 6CO2 plus 6H2O and energy in the form of ATP. And this is a catabolic pathway. Catabolic pathway means the main molecule is breaking down into different components and providing the energy. So it is a catabolic pathway. And sometimes Krebs cycle is known as amphibolic pathway. Amphibolic means both catabolic and anabolic pathway. In catabolic pathway, what happens? The molecules break down, compound break down into several small components, and in anabolic pathway, lots of small molecules join together to form a large molecule, that is anabolic. So Krebs cycle is known as amphibolic pathway. It functions as both catabolism and anabolism. Energy yielding around in eukaryotes, if we are talking about 30 to 32 ATPs are formed in case of respiration. And the site, yes, the respiration occurs in 3 major steps. ठीक है, पहला, first one is glycolysis, second is Krebs cycle and third one is electron transport chain. आपको बेसिकली समझना है कि रेस्पिरेशन होता क्या है. ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या है, द ग्लाइकोलाइसिस जो हमारा पाथवे होता है, ग्लाइकोलाइसिस इट इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. मतलब अगर ऑक्सीजन है देन ऑल्सो इट विल बी देयर, और ऑक्सीजन नहीं है देन ऑल्सो इट विल बी देयर. तो ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन, एंड आफ्टर दैट द प्रोसेस will be determined by the presence of or absence of oxygen. If the oxygen is present, तो Krebs cycle होगी and electron transport chain. And if the oxygen is absent, then then anaerobic respiration will take place. And anaerobic respiration we will deal later on. हम लोग यहाँ पे aerobic respiration की बात करेंगे. ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. देखिए, आगे जाने से पहले देयर आर सम टर्म्स विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज NADH, NADH, FADH2. ओके, निकोटीन एडेनोसिन डाई हाइड्रोजन एंड NADH and FADH2. So ये क्या होते हैं? These are energy components. ठीक है, NADH is breaks down to produce different ATPs. ठीक है, पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें 3 ATPs की बात की जाती थी, बट nowadays the things are changed. बहुत पहले से चेंज हो चुका है एक्चुअली. तो NADH को कितना ATP हम मानते हैं अब? 2.5 ATP. NADH release the 2.5 ATP and FADH release 1.5 ATP. ठीक है, वैसे हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हम लोग को 3 ATPs and
2 ATPs, 3 फ्रॉम NADH एंड 2 फ्रॉम FADH2। तो ये ATPs का जो है लिंकअप होता है। अब एक्चुअली क्या होता है वो जानते हैं। हियर यू कैन सी this is glucose. Okay, the glucose molecule which all are having in their body, even in plant body also. So glucose molecule first convert into pyruvic acid, that is pyruvate or pyruvic acid. ठीक है, pyruvic acid is a carboxylic acid, 2 carbon carboxylic acid, and then this process is called as glycolysis and it occurs in the cytoplasm of the cell, and this pyruvic acid will again convert it into acetyl coenzyme A. This is called as the link reaction and it occurs in mitochondria of a cell, and this acetyl coenzyme A will again enter in the citric acid cycle or Krebs cycle, and it will produce NADH, FADH and 1 ATP. Okay, so what actually happens in the respiration is that the glycolysis pathway also releases some NADH and ATP. Similarly, pyruvic acid to acetyl coenzyme A, this reaction also releases the NADH, and the citric acid cycle or Krebs cycle also release the NADH and FADH2, and this NADH and FADH2 breaks down and produce the energy. So first process, this process, glucose to pyruvic acid is glycolysis, pyruvic acid to acetyl coenzyme A is link reaction, and this acetyl coenzyme A converts into converts and releases the NADH and FADH2 in citric acid और Krebs cycle. ओके, और ये जितने भी सारे NADH रिलीज हो रहे हैं ये सब ब्रेक डाउन करके हमें ATP प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो ATP, और इसको हम एरोबिक इसलिए कह रहे हैं, ये क्या होंगे कि दे विल रिलीज द इलेक्ट्रॉन एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल पास थ्रू डिफरेंट स्टेप्स. ठीक है, वो अलग अलग स्टेप्स से पास होगा एंड दैट इलेक्ट्रॉन comes to oxygen, और वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएगा एंड ऑक्सीजन विल बी द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. वो ऑक्सीजन लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा एंड इट विल रिलीज द वाटर. और लास्ट में क्या होगा, these all NADH breaks and FADH breaks and forms the ATP, और लास्ट में हमारे ATP बनेंगे. तो इसी को हम कहते हैं respiration process and this is complete process. Now we will study the glycolysis process in detail. As I have told you earlier also, it is common in both aerobic and anaerobic respiration, and the glycolysis occur in 2 phases, that is first is preparatory phase, that is energy investment phase. इसमें क्या होता है कि energy investment का मतलब है it requires 2 ATP, मतलब 2 ATP की खपत होगी. ओके, and second is payoff phase. payoff phase मतलब it will release the ATP, वो ATP रिलीज करेगा and NADH also it will release, right? And what happens, आपका preparatory phase में glucose will get converted into glyceraldehyde 3-phosphate, and in payoff phase what happens, it converts the glyceraldehyde 3-phosphate into pyruvic acid. And what you have to remember is that iodoacetate inhibits the glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase enzyme. So this question comes in various exams. तो iodoacetate आपका जो है gap dehydrogenase को inhibit करता है. This you have to remember. So here is the glycolysis pathway. This you have to learn by heart. Okay, and most important thing is enzymes. Enzymes you have to learn it. And what happens actually? Yes, we can see here this glucose. This glucose gets converted into glucose 6-phosphate in the presence of enzyme 1, that is hexokinase. Hexokinase enzyme की presence में glucose 6-phosphate में convert होता है, and then glucose 6-phosphate converts into the fructose 6-phosphate in the presence of enzyme
विच एंजाइम? फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम वो एंजाइम होता है जो कि चेंज करता है व्हाट, आपके फंक्शनल ग्रुप को चेंज करता है, बट द कार्बन कंपाउंड्स का नंबर वगैरह सब सेम रहता है, ठीक है। तो इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसमें एंजाइम आपका लगेगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। दिस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम लगेगा और बनेगा आपका फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, एंड देन एल्डोलेस एंजाइम के प्रेजेंस में देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 2 phosphate, and there are two compounds which are formed, glyceraldehyde 2 phosphate and dihydroxyacetone फॉस्फेट, ठीक है। अब आपको ये बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा दैट ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज आल्सो अ 6 कार्बन कंपाउंड, फ्रक्टोज 6 phosphate is also 6 carbon compound, and fructose 1,6 bisphosphate is also a 6 carbon compound. Now glyceraldehyde 3 phosphate is a 3 carbon compound. It is a 3 carbon compound. So basically what happens, 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate will be formed, ठीक है। and now from here the molecule number will get double, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 molecules will be formed. So glyceraldehyde 3 phosphate के 2 molecules now will react and form the 1,3-biphosphoglyceric acid, this compound. In the presence of enzyme glyceraldehyde phosphate dehydrogenase. In the presence of enzyme phosphoglycerate kinase, okay, and after that 3-phosphoglyceric acid will get converted into 2-phosphoenol pyruvate in the presence of enzyme phosphoglycerate mutase, okay, and then phosphoenol pyruvate will get converted into pyruvic acid. Last enzyme is phosphoenol pyruvate, okay, and one of the enzyme is enolase which is in between, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि इनोलेज एंजाइम का इनहिबिटर कौन है। सो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए लिख के भी रखा हुआ है इरिवर्सिबल स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज, दिस इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है, ये भी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड जो बनता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, एंड एंजाइम इज pyruvate kinase. So the 3 enzymes, hexokinase, phosphofructokinase and pyruvate kinase, all are the example of irreversible reactions. And most important thing is that phosphofructokinase is a rate limiting step that I will tell you in different slides, okay, because इसमें जो है rate regulating steps होते हैं बहुत सारे, तो वो उसको हम लोग बाद में बताएंगे। And total steps glycolysis में 10 होते हैं, and rest जितने भी हैं वो irreversible steps है। and नेट गेन एटीपी आपके कितने होते हैं? 2। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जो एटीपी है, here you can see this ATP and this ATP, these are ATP consumed, and ATP produced are here, 2 ATP here, 2 ATP here, so 4 ATP are produced and 2 ATP are consumed, so net gain is 2 ATP, okay, and rest 2 NADH are also produced. So net gain ATP are 2, means 4 ATP are producing, 2 are getting consumed, and now rest is 2 rest remaining, okay, and 2 NADH are produced, okay. So here you can see that 2 consumed, 4 produced, net gain 2 ATP, and NADH 2 NADH are being produced. Now these are the enzymes which we have to learn, and the activator or cofactor involved for the enzymes. Basically these are the activator ions, and they can be asked in any question, any type of exams, like hexokinase का activator कौन है? That is magnesium, okay. phosphoisomerase का कोई ऐसा specific activator ion नहीं है। phosphofructokinase again it is magnesium, ठीक है। एंड देन एल्डोलेस का जो है आपका जो होता है
कोफैक्टर रहता है, ठीक है, या एक्टिवेटर या कोफैक्टर वो जिंक रहता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज NADP पॉजिटिव की प्रेजेंस में इंक्रीज होता है। एंड फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज अगेन इट इज Mg2 पॉजिटिव। आप देख सकते हैं म्यूटेस Mg2 पॉजिटिव, इनोलेस में Mg2 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव, काइनेज पाइरुवेट काइनेज में Mg2 पॉजिटिव एंड पोटेशियम 2 पॉजिटिव। So here you can see that how much magnesium ion is important for glycolysis to occur. Most of the enzymes involved in glycolysis having activator or cofactor ion as magnesium. So now comes link reaction. So the pyruvic acid, which is a 2-carbon compound, which was formed during glycolysis in cytoplasm of the cell, now will go towards the link reaction, and the link reaction basically occurs in the mitochondria of the cell. Link reaction आपका mitochondria में होता है and glycolysis occur in the cytoplasm. Link reaction से पहले ही decide हो जाता है whether the steps will be going to be anaerobic or aerobic. If there is presence of oxygen, then the steps will be aerobic, and if no oxygen will be there, then it will move towards the anaerobic reaction. So link reaction basically आपका जो respiration है, it is moving towards the aerobic respiration. So what happens here? The pyruvic acid, which is a 3-carbon compound, get combined with the coenzyme A and NAD positive. Okay, and it leads to the formation of acetyl coenzyme A, carbon dioxide and NADH will be released and F1H positive. आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा that here the process is occurring is called as ऑक्सीडेटिव decarboxylation. Decarboxylation हम इसलिए कह रहे हैं because one CO2 is releasing. Okay, this CO2 is releasing, that is why it is called as decarboxylation, and here the oxidation reaction is taking place. This pyruvic acid is getting oxidized into acetyl coenzyme A, और इसको oxidation में कौन help कर रहा है? This NAD positive ये convert हो जा रहा है NADH में. Okay, ये NAD positive it accepts one electron and it get converted into NADH, और इसी को हम कहते हैं reduction. So pyruvic acid का यहाँ पे oxidation हो रहा है into acetyl coenzyme A, and NAD positive accepts one electron and it forms the NADH. तो ये NADH बना दे रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है that is why जब pyruvic acid का ऑक्सीडेशन हो रहा है, that is why it is called as oxidative decarboxylation. This is very important, very important, and here you can see the pyruvic acid, 2 molecules of pyruvic acid will be there because glucose was 6-carbon compound and it get converted into 2 molecules of 3-carbon compound, क्योंकि हमें स्टोकियोमेट्री जो है मेंटेन करनी होती है, that is why. तो जो पायरुविक एसिड है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस होने वाले NADH होंगे दैट विल आल्सो बी 2. तो 2 मॉलिक्यूल्स NADH के यहाँ पे लिंक रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, ये आपको याद रखना है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर दिस इज which is pyruvate dehydrogenase complex, which is also called as PDC, and the 3 enzymes of pyruvate dehydrogenase complex are there. सबसे पहला है आपका pyruvate dehydrogenase cofactor, और इसका आपका cofactor रहता है TPP thiamine pyrophosphate, and the second is dihydrolipoyl ट्रांसएसिटाइलेज कोफैक्टर, जिसमें आपके कोफैक्टर्स रहते हैं लिपोइक एसिड एंड कोएंजाइम ए, और इसके बाद डाइहाइड्रोलिपोइल, इसके कोफैक्टर्स रहते हैं FAD एंड NAD पॉजिटिव. ये आपके जो है कोफैक्टर्स में यहाँ पे इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि कई बार लिंक रिएक्शंस में सिर्फ और सिर्फ कोफैक्टर्स ही पूछ लिया जाता है कि बताइए पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के कोफैक्टर कौन है. सो यू हैव टू रिमेंबर थाइमिन पायरोफॉस्फेट, लाइक डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज के कोफैक्टर्स कौन है, यू हैव टू रिमेंबर लिपोइक एसिड एंड कोएंजाइम ए. सो दीज ऑल आर द कोफैक्टर्स. ठीक है, तो आप यहाँ पे मैंने छोटा सा इसमें देख सकते हैं दिस प्रोसेस ऑफ लिंक रिएक्शन. हियर इट इज देयर pyruvic acid which is 3-carbon compound get converted into 2-carbon compound, and here that is acetyl coenzyme A, and 1 carbon is lost in the form of carbon dioxide, that is decarboxylation reaction. So this you have to remember. So
नाउ कम्स द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या होती है? क्रेब्स साइकिल में आपका जो पायरुविक एसिड है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में आ चुका है, इट गेट कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाउ दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए विल एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, ये आपका क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा। ठीक है, क्रेब्स साइकिल एक्चुअली किसने डिस्कवर किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस एडोल्फ Krebs in 1937 and there are multiple names, बहुत सारे नाम है Krebs साइकिल के, so never get confused, वो किसी भी नाम से क्वेश्चंस आते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, Krebs साइकिल and important is that it is amphibolic pathway, anabolic and catabolic। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसको एनाबॉलिक क्यों कहते हैं, कैटाबॉलिक तो अंडरस्टैंड हम लोग समझते हैं कि क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रेकिंग डाउन। और एनाबॉलिक क्यों कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बिकॉज इट इज द प्रोसेस। Krebs साइकिल जो है उसकी हेल्प से जो है देयर आर मल्टीपल कंपाउंड्स, मल्टीपल प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स दे कैन फॉर्म, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द एनाबॉलिक पाथवे। ठीक है, दैट इज, और ये दोनों होता है कैटाबॉलिक एनाबॉलिक, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फीबॉलिक पाथवे। इन यूकैरियोट्स इट occurs in mitochondrial matrix and in prokaryotes it occurs in cytosol, and all the enzymes of Krebs cycle are found in mitochondrial matrix except one enzyme, that is succinate dehydrogenase enzyme, which is found in inner mitochondrial membrane. Okay, this enzyme is found in inner mitochondrial membrane. We all know that the mitochondria is double membrane structure, so in inner membrane of mitochondria succinate dehydrogenase is found. So total yield क्या होती है Krebs cycle की? We will receive 3 NADH, 1 FADH2 and 1 GTP और 1 ATP। ठीक है, एनिमल्स के केस में जो है हम GTP पाते हैं एंड इन प्लांट के केस में हमें एक ATP मिलता है। ठीक है, तो ये हमको जो है याद रखना है, और इससे हम लोग लेटर ऑन वी विल कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ ATP वी आर रिसीविंग। सो दिस इज द Krebs साइकिल। Krebs साइकिल में बेसिकली आपको ये याद रखना है कि आपका ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन आपका कहाँ पे हो रहा है वो चीजें याद रखनी होती है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है वो भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जब भी कभी ऑक्सीडेशन होती है तो वहां पे एंजाइम मिलेगा आपको डीहाइड्रोजनेस। डीहाइड्रोजनेस एंजाइम का क्या काम होता है? डीहाइड्रोजनेस एंजाइम इट रिमूव्स द हाइड्रोजन, और जहां पर भी हाइड्रोजन रिमूव होती है इट मीन्स दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑक्सीडेशन यहाँ पे 3 जगह पे होता है, और वही ऑक्सीडेशन होने की वजह से ही आपका NADH प्रोड्यूस होता है। सो आई विल टेल यू लेटर ऑन। अभी हम देखते हैं कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो हमें लिंक रिएक्शन से मिला था, दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइंस विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड व्हिच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। तो 4 कार्बन कंपाउंड प्लस 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम में इट विल फॉर्म द citric acid, and this citric acid you can see here, this is citric acid and the citric acid is a 6 carbon compound। आप ये समझते होंगे कि citric acid मैं बोल रही हूँ एंड यहाँ पे citrate लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है citric acid is acid means hydrogen is intact and citrate means hydrogen is removed and COO नेगेटिव। ठीक है, तो वन एंड द सेम थिंग, बात एक ही है। आप उसको सीट्रेट भी बोल सकते हैं, यू कैन कॉल इट सिट्रिक एसिड ऑल्सो। तो ये देखिए यहाँ पे जो COO नेगेटिव है ना, यहाँ पे हम इसको जो है सीट्रेट कह रहे हैं, और यही अगर COOH हो जाएगा तो देन वी विल कॉल इट एज सिट्रिक एसिड। सो सिट्रिक एसिड एंड द एंजाइम विल बी एकोनिटेज, राइट, एंड आफ्टर दैट this citric acid will get converted into cis aconitic acid, and this enzyme will be aconitase, and again this cis aconic acid will converted into isocitric acid। Okay, till now the compounds are, the carbon compound या carbon number will be 6। तो isocitrate आपका, isocitrate से आपका क्या बनेगा? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, दिस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अब आपको ये समझना है कि आइसोसिट्रेट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड एंड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पर भी जो आपका रिएक्शन हो रहा है दिस इज अ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव इसलिए क्योंकि आइसोसिट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है कीटोन में। एसिटिक एसिड या एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन, तो वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड देयर इज अ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन एंजाइम। ठीक, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन।
right? And the enzyme responsible is isocitrate dehydrogenase. Removal of hydrogen is called as oxidation, and after that alpha ketoglutaric acid will again convert into succinyl coenzyme A. succinyl coenzyme A आपका यहाँ पे जो है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में आपका जो है ये कंपाउंड बनेगा। एंड आफ्टर दैट दिस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा, एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिक एसिड, ठीक है। एंड सक्सिनिक एसिड बनेगा। सक्सिनिक एसिड के बाद हियर इट इज फ्यूमेरिक एसिड, एंड फ्यूमेरिक एसिड से देन अगेन मैलिक एसिड, एंड मैलिक एसिड से अगेन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन 3 जगह पे होता है। पहला आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, दूसरा अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एंड तीसरा मैलेट डिहाइड्रोजनेज। मैलिक एसिड जब आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है तब आपका एक ऑक्सीडेशन होता है। So oxidation occur in basically three places, 1, 2 and 3. तो अब हमारा इसका क्रेब्स साइकिल का यील्ड क्या होता है ये हमको याद रखना है। कौन कौन सा है आपका 3 NADH and 2 FADH and 1 ATP molecule. This is the yield of Krebs cycle. इस साइकिल को डिस्कवर करने वाले हैंस एडोल्फ क्रेब। आपको याद रखनी है साइकिल, सिट्रिक एसिड, एकोनिटिक एसिड, देन आपका आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये साइकिल आपकी रिपीटेड चलती रहती है, ठीक है। और एक बात और कि आपका जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो 2 पायरुविक एसिड रिलीज होते हैं, 2 बार लिंक रिएक्शन चलता है और 2 बार क्रेब्स साइकिल चलती है। इस चीज को आपको गांठ बांध लेनी है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ में क्योंकि वहां पे 2 पायरुविक एसिड रिलीज हो रहे थे तो क्रेब्स साइकिल भी 2 बार चलेगी। नाउ इनहिबिटर्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के कौन कौन से इनहिबिटर्स होते हैं तो आपको ये याद रखना है। फ्लोरोएसिटेट is inhibitor of aconitase enzyme. Arsenate is a inhibitor of alpha ketoglutaric dehydrogenase complex. Malonate को competitive inhibitor भी कहते हैं। Malonate is the inhibitor of succinic dehydrogenase, and this succinic dehydrogenase enzyme is the enzyme which is found in inner membrane of mitochondria. It is exception. Rest all the enzymes are found in matrix of the mitochondria, right? And the cyanide एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जो है इनहिबिट कर देता है और इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। अब हम लोग एटीपी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एटीपी 2 मिलते हैं हमें और एनएडीएच भी 2 मिलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में अगर हम 1.5 एटीपी को रखते हैं, देखिए एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि एनएडीएच जो होता है इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस 2.5 एटीपी, लेकिन जो ग्लाइकोलाइसिस से एनएडीएच आता है इट इज एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल NADH, right? And it will yield only 1.5 ATP. ये एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना है कि जितने भी NADH प्रोड्यूस होंगे, NADH प्रोड्यूस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, that will produce 2.5 ATP and एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल जो होगा NADH वो प्रोड्यूस करेगा 1.5 ATP. तो रेस्ट हियर विल बी 3 ATP will be formed, and लिंक रिएक्शन में आपको पता है कि दो थे NADH क्योंकि 2 पायरुविक एसिड थे और 2.5, सो द अमाउंट ऑफ एटीपी विल बी 5। एंड क्रेब्स साइकिल में आपका कितना है, क्रेब्स साइकिल में आपका NADH जो है डबल हो जाते हैं, जैसे 3 NADH थे तो 6 NADH, 2 FADH एंड 2 ATP, सो टोटल विल बी 15, 3 and 2. Hence the total number of ATP produced from one molecule of glucose is 30. कभी कभी एग्जाम में 30 या 32 ऑप्शन में दिया होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आपका 30 जाएगा, तो ये आपको याद रखना है।
कभी कभी शटल के बारे में भी पूछ लेता है, तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल होता है दैट प्रोड्यूसेस 30 एटीपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अगर शटल पूछता है तो आप एक्यूरेट 30 लगाएंगे, और जो दूसरा वाला मेलेट शटल होता है वो जो है 32 एटीपी प्रोड्यूस करता है। जस्ट अगर शटल के बारे में उन्होंने बात नहीं की है एग्जाम में, तो आपका 30 विल बी द आंसर। कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि एक सुक्रोज मॉलिक्यूल कितना एटीपी प्रोड्यूस करता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना एटीपी प्रोड्यूस करता है, या एक पायरुविक एसिड कितना मॉलिक्यूल एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो दिस पोर्शन ऑफ दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 30 एटीपी, वन सुक्रोज प्रोड्यूस जस्ट डबल, बिकॉज सुक्रोज इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज से 30 एंड फ्रक्टोज से 30, 30 प्लस 30 इज 60, तो ये 60 आपका एटीपी प्रोड्यूस करेगा। पायरुविक एसिड से आपका जब शुरू होता है तो वो 12.5 एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और एसिटाइल कोएंजाइम एक ही अगर हम बात करें, मतलब लिंक रिएक्शन को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो वो सिर्फ 10 एटीपी प्रोड्यूस करेगा। तो दिस यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। Now comes the इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम लोग 5 कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है कि दीज आर एंजाइम के जो है कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। और होता क्या है एक्चुअली, अब जितने भी आपके NADH बन गए हैं, लिंक रिएक्शन से हो गया, ग्लाइकोलाइसिस से हो गया, चाहे वो क्रेब्स साइकिल से हो गया, अब ऑल दीज NADH, FADH and ATP, तो खैर ATP है ही, so NADH and FADH now will break down to produce the ATP। ये ATP बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, वो सारा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमको पढ़ना होता है, राइट। तो इसके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 1 में आपका NADH डिहाइड्रोजनेज होता है एंड इट्स कंपोनेंट आर FMN एंड FES, हाइड्रोजन सल्फर प्रोटीन, फ्लेविन, मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये सारे आपके कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स 2 में सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज रहता है, FAD एंड आयरन सल्फर प्रोटीन आपकी रहती है। एंड ये भी आपको याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स 1 का इनहिबिटर कौन है, राइट। तो कॉम्प्लेक्स 1 का इनहिबिटर कौन है इसमें, रोटेनॉन एंड एमाइटल इज द इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 एंड पेरिसाइडिन A। एंड कॉम्प्लेक्स 2 का जो इनहिबिटर है दैट इज मेलोनेट एंड TTFA, राइट। एंड देन कम्स दी कोएंजाइम Q, ठीक है। कोएंजाइम Q इज यूबिक्विनॉन। यूबिक्विनॉन क्या होता है, यूबिक्विनॉन एक लिपिड सॉल्युबल क्विनॉन होता है एंड ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स 3 होता है आपका साइटोक्रोम BC1 या BC हम कह सकते हैं, और इसके कंपोनेंट साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C एंड आयरन सल्फर प्रोटीन, और इसका आपका इनहिबिटर इज एंटीमाइसिन A। इधर देख सकते हैं हम। देन साइटोक्रोम C इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। आपको याद रखना, यूबिक्विनॉन एंड साइटोक्रोम C आर दी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, और ये हीम प्रोटीन से मिलके बना होता है। एंड कॉम्प्लेक्स 4 क्या होता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसमें कौन कौन से होते हैं कंपोनेंट, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर। और ये क्या होता है, ये आपको ऑक्सीजन के साथ में लिंक्ड होता है एंड दिस एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है याद रखना है आपको, साइनाइड एंड एजाइड्स, ये सारे H2S, ये सब इसके इनहिबिटर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 इज ATP सिंथेज, और ATP सिंथेज आपका क्या करता है, ATP बनाता है या ATP प्रोड्यूस करता है, जिसको हम F0 F1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एंड दिस प्रोड्यूसेस द ATP। And the oligomycin is the chemical compound which is inhibitor of this ATP formation. So moving on to the next part, that is component of electron transport chain. Whatever the components we have studied in the previous slide, we are going to have its pictorial representation. Here you can see this is complex 1,
complex 1 which consists of internal NADH या internal NADH dehydrogenase, and it have iron sulfur protein. Complex 2 which have discussed earlier also, that is succinate dehydrogenase, and this is complex 2. And the complex 3 here, that is cytochrome B and C1, this is complex 3. And complex 4 is that here cytochrome A and A3, and this is complex 5, that is ATP synthase. Okay, and in between there are two mobile electron carriers, that is ubiquinone and cytochrome C. So basically what happens, ये NADH जो आए हैं हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्रॉम Krebs साइकिल, तो इंटरनल वाले जो होते हैं, इंटरनल वाले हम कहते हैं दैट कम्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया. द NADH which comes from mitochondria, this comes in complex 1 और इसका ऑक्सीडेशन होता है. एंड आफ्टर ऑक्सीडेशन व्हाट हैपेंस, आफ्टर ऑक्सीडेशन ये रिलीज करेगा एक इलेक्ट्रॉन एंड 1 H पॉजिटिव. ओके, एंड दैट H पॉजिटिव विल रिलीज इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक, और फिर इसी तरीके से एंड द इलेक्ट्रॉन विल पास टू द यूबिक्यूनॉन, एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल अगेन कम्स टू द कॉम्प्लेक्स 3, एंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स C, cytochrome C, and from cytochrome C to cytochrome A3, and then it will comes to the oxygen. और ऑक्सीजन में वो इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट करेगा और वो हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होकर के इट विल फॉर्म द वाटर. So last electron acceptor is oxygen in any type of aerobic reactions. ठीक है, अब होता क्या है कि complex 1 it releases H positive, this complex 3 releases H positive, and complex 4 रिलीजेस H पॉजिटिव. ये तीन कॉम्प्लेक्स जो है H पॉजिटिव रिलीज करते हैं इन इनर मेम्ब्रेन. जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होती है ना, उसमें ये H पॉजिटिव को रिलीज कर देते हैं, राइट. एंड कॉम्प्लेक्स 2 डू नॉट रिलीज दी H पॉजिटिव आयंस. तो H पॉजिटिव आयंस, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं. सो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4. एंड सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस का क्या काम होता है, इट ऑक्सीडाइज दी FADH, ये FADH को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है. एंड दिस इज एक्सटर्नल NADH, ये एक्सटर्नल NADH है. ये क्या करता है कि एक्सटर्नल NADH डायरेक्टली यूबिक्यूनॉन को इलेक्ट्रॉन देता है, एंड देन दिस इलेक्ट्रॉन पासेस टू दी कॉम्प्लेक्स 3 and complex 4 and after that to oxygen. इसी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं there are 3 sites of ATP synthesis. First site complex 1, second site is complex 2, ये देखिए second site of ATP synthesis, and third site is here at complex 4. ठीक, और जो external NADH है that comes from glycolysis और from cytosol, ये जो होता है ये एक ATP synthesis की site को miss कर देता है, and this comes directly here. तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जो हमारे 2.5 ATP बनने चाहिए थे, now it will become 1.5 ATP. समझ में आया. तो इस तरीके से अब आप यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स 8 अगर NADH आता है यहाँ पे इंटरनल NADH डिहाइड्रोजनेस के सामने, तो उसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स 1 4 H पॉजिटिव रिलीज करता है इन इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में. कॉम्प्लेक्स 3 4 H पॉजिटिव रिलीज करेगा, कॉम्प्लेक्स 4 2 H पॉजिटिव. सो टोटल नंबर ऑफ H पॉजिटिव रिलीज्ड बाय NADH इज 10 H पॉजिटिव. तो यही H पॉजिटिव ग्रेडियंट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द ATP. आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, ऑल द कॉम्प्लेक्स आर अरेंज here in inner membrane of mitochondria. This is the inner membrane of mitochondria, and each and every components are arranged here. And let us start. This is complex 1, this is complex 2, this is complex 3, complex 4, and this is complex 5, that is ATP synthase. Complex 1 में NADH get oxidized to form the NAD positive. Here you can see this is NAD positive, and it releases H positive. Okay, and this H positive comes in intermitochondrial membrane space, intermembrane space, and after that this succinic acid change into fumaric acid, and that FADH
comes from here, from complex 2. Okay, and the electron enters into ubiquinone, and from ubiquinone to complex 3 to complex 4, and then at last this electron will be accepted by oxygen. Here you can see this oxygen accepts the electron, and with the help of 2H positive it forms the water. And what now you can see here, the concentration of H positive in intermembrane space is higher as compared to concentration of hydrogen या H positive ion in matrix of the mitochondria, right? क्योंकि ये जितने भी complex है, complex 1, complex 3 and complex 4 are continuously pushing the hydrogen in intermembrane space. So the hydrogen concentration here will be much higher. And now what happens? The proton gradient will be created. The higher concentration, you can see here lots of positive ions, you can see here plus signs indicates the hydrogen ion concentration, and here in the matrix you can see the negative ions. These negative ions you can able to see here, and what they do, they create a proton motive force, and this force is responsible for producing the ATP. And here you can see this ATP synthase. This is ATP synthase, F0, F1 particles. These are arranged in inner membrane of mitochondria. And what happens, यहाँ से जब प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होता है तो एक H पॉजिटिव आयंस अंदर की तरफ इधर मूव करता है, ठीक है, इसमें से, इस शटल में से. एंड व्हाट हैपेंस, दिस होल शाफ्ट रोटेट्स एंड इट कन्वर्ट्स द ADP plus Pi into ATP, and hence the formation of ATP takes place. तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, और ऑक्सीजन तक आकर ये वाटर बनाता है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे ATP जनरेट होता है. So the conversion of NADH to NAD positive is called oxidation. This you have to remember. आपको कोई भी concept clear नहीं होगा अगर आप oxidation और reduction को नहीं समझ पाते हैं. So the conversion, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है एंड पॉजिटिव चार्ज आता है किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, then it means the oxidation is taking place. या तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर डिहाइड्रोजनेशन हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, in which NADH loses electron as well as hydrogen. ठीक है, तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देखिए, इलेक्ट्रॉन्स मूव to proton pumped gradient form and ATP made. Oxygen accept the last electron. तो ये पूरा प्रोसेस आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का होता है. इस तरीके से ATP का फॉर्मेशन होता है. जो मैंने आपको अभी सब डिटेल में बताया है, ईच एंड एवरी पॉइंट हैज बीन रिटन इन दिस स्लाइड. तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. केमी ऑस्मोटिक थ्योरी पीटर मिचेल या पी मिचेल ने दिया था, एंड इन्होंने बताया था कि किस तरीके से ATP का फॉर्मेशन होता है. दैट इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड दी 10 protons are pumped in inner membrane of mitochondria and per NADH molecule, 4 by complex 1, 4 by complex 3 and 2 by complex 4, and this proton gradient force is responsible for production of ATP. Now ATP synthase, एक्चुअली ATP synthase क्या होता है और वो मॉलिक्यूल कैसा होता है और वो किस तरीके से ATP को बनाता है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पहले हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं. ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ATP synthase मॉलिक्यूल. ठीक है, ये ATP synthase है. दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ATP. ठीक है, ये ATP के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है. नाउ लेट्स स्टडी लोकेशन क्या है ATP सिंथेस की. इट इज इन यूकैरियोट्स इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हियर, एंड इन प्रोकैरियोट्स इट्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लोरोप्लास्ट में ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में रहता है. एंड देन स्ट्रक्चर, ATP सिंथेस के दो स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज F0 एंड F1. तो सबसे पहले हम F0 कंपोनेंट की स्टडी करेंगे. इट इज मेम्ब्रेन एम्बेडेड पार्ट एंड इट फॉर्म्स द प्रोटॉन चैनल. राइट, प्रोटॉन चैनल, जैसे कि इसकी 3 यूनिट्स है, A, B and C. Here you can see A, B and C unit, okay, and conducts H positive ion across the membrane and drives the rotation. 3 H positive means 1 ATP formation. In this you can see here, this is F0 particle.
दिस इज F नॉट पार्टिकल, ओके। एंड व्हाट हैपेंस, ये A, B एंड C सब यूनिट से मिलके बना होता है, और ये क्या करता है, ये H पॉजिटिव आयंस को फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मींस फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में H पॉजिटिव को ट्रांसफर करता है। इट रोटेट्स, ये रोटेट भी करता है, एंड 3H पॉजिटिव जब इसमें से ट्रांसफर होते हैं तो 1 ATP फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपकी। Now let's study F1 particle. F1 particle आपका मैट्रिक्स साइड में होता है, whether it is माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम कैटालिटिक हेड भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कैटालिटिक हेड। और इसमें कितनी यूनिट्स होती है, इट इज मेड अप ऑफ 9 यूनिट्स, 3 अल्फा यूनिट, 3 बीटा यूनिट, गामा यूनिट, एप्सिलॉन एंड gamma, delta and epsilon. These 3 units are the part of F1 component. Here you can see 3 alpha unit. This is F1 particle. F1 है ये, और इसमें 3 alpha, 3 beta, okay, and gamma, delta, epsilon. These 9 units are there. And mechanism क्या हो रहता है इसका? Mechanism इसका रहता है, पॉल बॉयर जो नोबेल प्राइज विनर है, इन्होंने इसका मैकेनिज्म बताया है। बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म के हेल्प से दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स वाया एफ नॉट पार्टिकल्स। एफ नॉट में से जो टनल होती है उसमें से H पॉजिटिव ट्रांसफर होंगे, और ये पूरा का पूरा जो है रोटेट करेगा, ठीक है। प्रोटॉन फ्लो रोटेट्स दिस C रिंग एंड गामा सब यूनिट एंड कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन बीटा सब यूनिट, ठीक है। बीटा सब यूनिट में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, और ये जो है आपका ATP का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एंड बीटा सब यूनिट इज लिंक्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ ATP। एंड वन फुल रोटेशन, अगर पूरा फुल रोटेशन होता है 360 डिग्री का, तो 3 ATP मॉलिक्यूल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखनी है। तो इसी के साथ जो है ये टॉपिक तो आपका क्लियर हुआ। रेस्पिरेशन चैप्टर हालांकि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, देयर आर लॉट्स मोर, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल का किस तरीके से रेगुलेशन होता है, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी।